کہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا تاکہ وہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا تاکہ زور آوروں کو شرمندہ کرے۔ خدا اکثر اوقات بیہائنڈ دا کرٹن یا بیہائنڈ دا سین یا پس پردہ خدا کام کرتا ہے، یعنی اپنے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جیسے جیسے وہ نبیوں کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ، عمرا کے ذریعے کلام پہنچاتا رہا ہے، ایسے ہی وہ جو چھپے ہوئے رستم ہیں ان کو بھی اپنے جلال کے لیے، اپنے نام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو غیر معروف ہیں، معمولی لوگ ہیں جن کا کوئی نام پتہ نہیں ہے، یا یوں کہیں جو بغیر شناخت کے ہیں، نامعلوم ہیں، ان کو خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ خدا اپنی اس محبت کو اس آیت میں اس طریقے سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی کو چھپا نہیں رہنے دیتا یا کسی سے بے انصافی نہیں کرتا، یا یوں کہہ لیں کہ اپنی الہی قدرت کو ان غیر معروف کریکٹر کے ذریعے بھی ظاہر کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو معمولی لوگ ہیں، غیر معروف لوگ ہیں، بغیر شناخت کے لوگ ہیں، جن کو لوگ عام طور پر نہیں جانتے، وہ دنیا کی نظر میں تو ان کی ویلیو نہیں ہوتی، دنیا کی نظر میں تو وہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن جب خدا ان کو استعمال کرتا ہے تو وہ زیرو سے ان کو ہیرو بنا دیتا ہے۔ آج پھر میں اسی ٹاپک پہ یعنی خفیہ غیر معمولی لوگوں کے، غیر معروف لوگوں کے بارے میں ایک کردار لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے یاسون۔ یاسون کا ذکر جو ہے وہ ہمیں اعمال کی کتاب اس کے 17 چیپٹر میں اور رومیو 16 باب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی وفاداری سے، اپنی تابعداری سے خدا کے نام کو جلال دیا، اور یاسون کا یونانی میں مطلب ہے ہیلر۔ ہاں جی، کیا نام ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ہیلر، یعنی علاج کرنے والا، شفا دینے والا اور کمفرٹ کرنے والا۔ اور یاسون نے اپنی وفاداری سے، اپنی دلیری سے پالوس اور سلاس کی کس طرح خدمت کی، کس طریقے سے ان کی جسے کہنا چاہیے دلیری ان کو دی، جیسے کوئی بیمار، جیسے کوئی شخص بیمار شخص کی کمانداری کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہے تو آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو وقت پر دوائی دیتے ہیں، اس کے لیے ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں، سب کچھ اس کو مہیا کرتے ہیں۔ تو یاسون نے پالوس اور سلاس کی اس طریقے سے کمانداری کی جیسے کوئی ایک بیمار شخص کی جاتی ہے۔ تو یاسون جو تھا وہ خدا کے فضل سے بہت ہی دلیر شخص تھا، وہ خدا سے محبت کرتا تھا۔ اور واقعہ جو بائبل میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ پالوس اپنے دوسرے مشنری سفر پر سلاس کے ساتھ جب نکلا، یعنی تسالونیکیہ کے شہر میں، تو وہاں پالوس نے 3 ہفتے کلام سنایا۔ بولے جی کتنے ہفتے؟ 3 ہفتے، یعنی 21 دن پالوس نے وہاں کلام سنایا۔ جب یہ کلام سنا رہا تھا ہر طرف چرچا تھا، کیونکہ یہ تسالونیکیہ کا شہر جو تھا وہ بہت بڑا شہر تھا، اور یہاں ہر قسم کے لوگ یہاں موجود تھے، یہودی بھی تھے، یونانی بھی تھے، اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے۔ تو جب پالوس کلام سنا رہا تھا تو وہاں بہت سے یونانیوں نے، بہت سے یہودیوں نے اور بہت سی معزز خواتین نے خدا کے کلام کو قبول کیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور جب خدا کے کلام کو قبول کیا گیا، ظاہری بات ہے جب کلام سنایا گیا، منادی کی گئی تو روحیں تو جیتی جانی تھی۔ جب ایسا ہوا، جب کلام سنایا گیا تو جو ارد گرد کے یہودی تھے انہوں نے بڑی آگ لگ گئی، وہ حسد سے بھڑ گئے اور وہاں مخالفت کھڑی ہو گئی، اور وہ حسد سے بھڑ گئے اور وہاں مخالفت کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے ہجوم کو بھڑکایا، انہوں نے ہجوم کو برگلایا کہ یہ لوگ جو کلام سنا رہے ہیں ان کو یہاں سے بھگا دو، اور انہوں نے ایک قسم کا بلبہ کھڑا کر دیا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یہودی پالوس کو تلاش نہ کر سکے۔ جیسے ہی جھگڑا شروع ہوا، جیسے ہی مخالفت شروع ہوئی خدا کے کلام کی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب خدا کا کلام پھیلتا ہے تو شیطان کو آگ لگتی ہے، اور یہاں بھی یہی ہوا کہ جو پالوس اور سلاس کلام سنا رہے تھے تو جو لوگ قبول کر رہے تھے ٹولیوں کی صورت میں خدا کے کلام کو قبول کر رہے تھے، لیکن وہاں جو یہودی تھے وہ حسد سے بھر گئے اور انہوں نے چند لوگوں کو ابھارا کہ آئے اور ان کو یہاں سے بھگائیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے جھگڑا ختم کیا تو انہیں پالوس اور سلاس نظر نہ آئے، یعنی پالوس اور سلاس کو وقت سے
उन्होंने घेर लिया और यासून और उसके साथियों को घसीट कर ले गए। लेकिन कलाम में लिखा है कि यासून बिल्कुल ना घबराया, क्योंकि उसे पता था कि जो लोग कलाम सुनाते हैं वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनको तो भगा दिया। लेकिन अगर यासून को खुदा की मनाती के लिए, खुदा के मनाती के मिशन के लिए दुख सहना पड़ा तो वो दिलेरी से दुख सहता रहा। आए मेरे साथ एक हवाला निकालिए, मार्क की किताब उसका 17 चैप्टर 17वां बाब और उसकी 6ठी आयत में ये लिखा है कि जब उन्हें ना पाया तो यासून और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चलाते हुए खींच कर ले गए कि वो शख्स जिन्होंने जमात को बागी कर दिया वो यहाँ भी आ गए। मैं बयान कर रही थी कि पालूस और सलास को महफूज जगह पर पहुंचा दिया गया। जाहिर बात है पूरे शहर में झगड़ा शुरू हो गया, यहूदी हसद से भर गया है, वो परेशान कर रहे हैं। लेकिन जब उनको बाहर पहुंचा दिया गया तो उन्हें पता था कि यासून जो है ये भी उनके साथ मिला हुआ था, ये भी है, इसलिए उन्होंने यासून के घर पर धावा बोल दिया, यासून के घर को चारों तरफ से घेर लिया और उसे घसीट कर अदालत में ले गए। लेकिन चूंकि खुदा के कलाम से डरते थे और फौरन उन्हें जमानत पर रहाई कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। यासून के बारे में चंद मालूमात आपके सामने और रखना चाहती हूँ कि यासून जो है वो ना वो नबी है, ना वो बादशाह है, ना कोई उसने कोई वास किया जैसे पतरस ने वास किया, फिलिप्पस ने वास किया और पालूस ने वास किया। इसका कोई वास हमें बाइबल में नहीं मिलता, ना इसका नाम शागिर्दों और नबियों में मिलता है, ना इसने कोई मिशनरी सफर किए। लेकिन खुदा के मिशन को इसने इस तरीके से जारी किया कि नबियों से, रसूलों से कहीं किसी तरीके से काम नहीं किया, बल्कि उनके बराबर खुदा की अंजील के लिए, खुदा के कलाम के लिए, कलाम के सुनाने वाले लोगों की इज्जत करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। यासून को इसलिए पकड़ लिया गया क्योंकि उन्होंने पालूस और सलास को अपने घर बना दे रखी थी। पालूस और सलास को अपने घर में रखता था। यासून ने अपना घर पालूस और सलास के लिए खोल दिया। हालेलुया। जब उसने देखा कि ये लोग दूर दराज सफर करके आए हैं और तसलीके के शहर में पहुंचे हैं और जब वो कलाम सुना रहे थे तो वो वहां यासून भी मौजूद था। यानी जैसे मैं कलाम सुना रही हूं आप लोग मौजूद है। जब पालूस और सलास कलाम सुना रहे थे तो यासून भी वहां मौजूद था और वो जानता था कि ये लोग जो है दूर दराज से सफर करके आए हैं, इनके लिए रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है, ये कहां जाएंगे। कलाम सारा दिन सुनाते कि मैंने पहले बताया 3 हफ्ते यानी 21 दिन उन्होंने खुदा की मनाती की, खुदा का कलाम सुनाया, तो उनको रहने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए थी, कोई ठिकाना चाहिए था। इसलिए यासून ने बड़ी दलेरी के साथ खतरात से खेलते हुए खुदा के लोगों के लिए अपना घर खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। यासून ने इसलिए घर अपना खोला क्योंकि वो जानता था कि खुदा के लोग जो है वो इज्जत के लायक हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। खुदा के खादमों की इज्जत करनी चाहिए या नहीं? खुदा के खादमों की इज्जत करनी चाहिए या नहीं? तो यासून इससे वाकिफ था, उसे पता था कि जो ये खुदा का कलाम सुना रहे हैं ये इज्जत के लायक है, इनकी डबल इज्जत है, इसलिए यासून ने अपना घर उनके लिए खोल दिया। आइए मेरे साथ एक हवाला देखें, पहला तीमुथियुस 5वां बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाते हैं और तालीम देने में मेहनत करते हैं, वो दो चंद इज्जत के लायक समझे जाए। हालेलुया। हर वो बात जो मैं कलाम में सुनाऊंगी वो खुदा के कलाम से साबित करूंगी। तो आप चाहते हैं कि आप साथ साथ खुदा का कलाम सीखें, तो यहाँ यही लिखा है कि जो लोग खुदा का कलाम सुनाते हैं उनकी इज्जत की जाए, जो लोग तालीम देते हैं उनकी इज्जत की जाए। और यासून ने ऐसा ही किया, उसे पता था कि ये खुदा का कलाम सुनाते हैं, इनके रूह में खुदा का जिंदा कलाम है, इसलिए उसने अपना घर इनके लिए खोल दिया। हाँ जी, यासून जो था वो मेहमान नवाज था। और जब ये इस शहर में पहुंचे हैं तो सारा दिन खुदा का कलाम सुनाते रहे, सारी रात खुदा का कलाम सुनाते रहे, रूहें जीतते रहे, खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाते रहे, प्यासी रूहों को जीतते रहे, खुदा की खेती में काम करते रहे और बहुत ज्यादा इतना कलाम सुनाया कि जब वो कलाम सुनाकर घर आते
خوشی کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کرتے تھے، اس کو کھانا کھلاتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، اس سے کلام سنتے تھے. یعنی دوسرے لفظوں میں جب آپ خدا کے خادموں کی عزت کرتے ہیں، اپنا دل اپنا گھر کھولتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو ہمیشہ برکتیں پاتے ہیں، روحانی طریقے سے برکت پاتے ہیں، جسمانی طریقے سے بھی برکت پاتے ہیں. جب خدا کے خادم آپ کے گھر جاتے ہیں تو وہ بعض کا کوئی بیمار ہے، اس کی بیماری کے لیے دعا کرتے ہیں تو بھی مریض جو ہے وہ شفا پا لیتے ہیں. اگر کوئی غربت میں ہے تو خدا کا خادم جب ان کے گھر میں اترتا ہے تو ان کے لیے دعا کرتا ہے تو موت سے ہوتے ہیں. یعنی جب آپ خادموں کو بلاتے ہیں تو آپ خود فیل کرتے ہو کہ گھر میں روحانی ماحول ہو گیا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چرچ میں بعض کا ہم گلیرے کے ساتھ پاسٹر کے ساتھ ایسے کوئی بات نہیں کر سکتے، یعنی ذاتی بات نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ خادموں کو گھر بلاتے ہیں یا کوئی سوال ہوتا ہے تو آسانی سے وہ سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے. ہاللیلویا. سارفت کی بیوہ نے ایلیا کی خدمت کی. اس کے گھر میں نہ روٹی تھی، نہ کوئی اور یعنی نہ پکانے کو تھا، نہ کھانے کو تھا. تو جب ایلیا نبی اس کے گھر گیا تو ایلیا نبی نے اسے کہا مت گھبرا، پریشان نہ، جو کچھ ہے تو پکا کے لے آ. اور جب وہ پکا کے لے آئی، کلام میں لکھا جب تک کال جاری رہا، نہ اس کے گھر میں کوئی چیز کی کمی آئی، نہ آٹے کی مٹی میں سے آٹا ختم ہوا، نہ تیل کا ذخیرہ جو تھا وہ نہ ختم ہوا. اس کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں آ گئی. ہاللیلویا. ساؤل نبی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ سیموئیل نے جب اسے مسا کرنا تھا تو ساؤل نبی سفر میں تھا تو سیموئیل نبی نے کہا کہ میرا مہمان آ رہا ہے، اس کے لیے ران کا گوشت الگ کر کے رکھ لے. میرا مہمان آ رہا ہے، اس کے لیے ران کا گوشت الگ کر کے رکھ لینا. اور جو ہی ساؤل پہنچا تو سیموئیل نبی نے کہا کہ وہ جو میں نے حصہ خدا کے نبی کے لیے رکھا تھا یا خدا کے خادم کے لیے رکھا اسے لے کر آؤ. تو اس طریقے سے سیموئیل نبی نے ساؤل کی جی وہ پرورش کی، مہمان نوازی کی، اور کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ مسافر ہے، سفر کر کے آیا. اور پچھلی دفعہ میں نے آپ کو کلام سنایا تھا برزیلی کے بارے میں کہ اس نے داؤد نبی کی اس طریقے سے خدمت کی کہ اپنی جتنی مہنگی قیمتی یعنی اناج اور کشمش سب کچھ، روٹی پانی چارپائیاں بستر سب کچھ داؤد اور اس کے خادموں نے لا کر دیا. وہ جانتا تھا کہ خادموں کی خدمت کرنے سے رزلٹ کیا ہے؟ پازیٹیو میں ملتا ہے. جب ہم خادموں کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اجر ملتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پالوس اور سلاس لمبا سفر کر کے آئے تھے. یاسون جانتا تھا کہ وہ مسافر ہیں، وہ پردیسی ہیں. آج اگر انہوں نے یہاں تسلیکے میں 3 ہفتے کلام سنایا، ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ اگلی جگہ چلے جائیں. اس لیے وہ جانتا تھا کہ جو مسافر ہے اس نے اپنا گھر کھولا، اس نے اپنا دل کھولا، اس نے ان کی راجنے جسے کہنا چاہیے نا، ان کی پرورش بھی کی، کھانے پینے اٹھنے جاگنے کے لیے سب کچھ اس نے مہیا کیا. آئے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں گے، عبرانیوں 13واں باب اور اس کی پہلی 2 آیت. یہاں لکھا ہے برادرانہ محبت قائم رہے، مسافر پروری سے غافل نہ رہو، کیونکہ اس وجہ سے باس نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمان نوازی کی. آپ نہیں جانتے کہ خدا کے خادموں کی جو آپ مہمان نوازی کر رہے ہیں، اس کے وسیلے سے آپ کو کتنا بڑا اجر ملے گا. ہے کہ نہیں؟ ملے گا کہ نہیں؟ اس لیے گھبرایا نہ کریں، پتہ نہیں 2 روٹیاں ایک پادری کو دینا کہ تو باقی کی بچے گا. سب کچھ آپ کے پاس آ جائے گا. اگر خدا کا خادم آپ کے پاس آتا ہے تو اگر شکر گزاری دینا پڑتی ہے تو ہانڈی کی بچے گا. مت سوچے، خدا خود مہیا کرے گا. ہاللیلویا. یاسون کی طرح نہ وہ معاشرے سے ڈرا، نہ لوگوں سے ڈرا، نہ وہ لوگوں کے تانوں سے ڈرا. اس نے دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کو سنانے والوں کے ساتھ مل کر ان کا علاج کیا. یعنی ان کا علاج جو پیاسی ہوئے تھی، ان کا علاج اس نے ان کے ساتھ مل کر کیا. جو بھٹکے ہوئے تھے ان کا علاج انہوں نے مل کے کیا. جو گناہ کی بیماری میں مبتلا تھے، میں نے آپ کو بتایا یسوع کا مطلب کیا ہے؟ ہیلر، علاج کرنے والا، شفا دینے والا. تو میں نے پہلے بتایا پاسٹر نہیں ہے، لیکن خدا کا کلام اس کے اندر اس قدر رس بس گیا تھا کہ اس نے اپنے خادموں کے ساتھ مل کر پیاسی روحوں کو، بیمار روحوں کو، بھٹکی ہوئی روحوں کو ان کا علاج کرنے کے لیے اپنے گھر کو کھولا. ہاللیلویا. اس لیے وہ کسی سے نہیں ڈرا. اس نے آدمیوں کو خوش نہیں
किया, वो ये नहीं, उसने ये नहीं किया ओ यहूदी तो मुझे पता नहीं क्या कहेंगे, मुझे यहूदियों से डरना चाहिए, यहूदी ने आगे मेरे घर पर धावा बोल दिया, यहूदी ने आगे मुझे घसीट कर ले गया, मुझे आगे उधर ले गया। वो बिल्कुल आदमियों से नहीं डरा, उस आदमियों से नहीं डरा, बल्कि उसने खुदा का कलाम सुनाने के लिए उनकी मदद की। हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। मेरे साथ एक हवाला निकालें, गलतियों पहला बाब और उसकी 10 आयत। यहाँ लिखा है, पौलुस रसूल कहते हैं, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को? क्वेश्चन है, सवाल कर रहा है। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मैं मसीह का बंदा ना होता। सुनी आए, आदमियों को खुश करने के लिए मत सोचे, अम्मी को खुश करने के लिए ये ना सोचे वो क्या करेगी। अगर किसी खादम की मदद करना चाहते हैं तो जरूर करें। ये ना सोचे कि मेरी पे में कमी आ जाएगी, या मेरा बाप क्या कहेगा, या लोग क्या कहेंगे, ये हाजी बन गया, ये बाइबल उठा के चर्च जा रहा है, ये ऊंची ऊंची गीत गा रहा है, या ऊंची ऊंची दुआ कर रहा है। मत परवाह करें, आदमियों की परवाह मत करें, पड़ोसियों की परवाह मत करें। जहां जहां आपको खुदा का कलाम सुनाने को मौका मिलता है, ये ना समझे कि मैं अनपढ़ हूं, ये ना समझे कि मुझे नहीं आता। जैसे ही आप जुबान खोलेंगे, पाक रूह आप पे ऊपर कंट्रोल कर लेगा, आपको वही अल्फाज देगा जो दूसरों की बरकत के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी ना शर्माए, कभी परेशान ना। रही बात दुखों की, रही बात परेशानियों की, ये तो पहले से ही खुदा ने, यीशु मसीह ने बता दिया था कि तुम्हें मेरे सबब से, मेरे नाम से बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अगर सामना करना पड़ता है तो क्या क्या होगा? खुदा बचा लेगा। आए मेरे साथ एक हवाला निकालें, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा है, जितने मसीह में दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब, बोले जी वो सब सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? सताए जाएंगे। यानी अगर आप खुदा का कलाम सुनाने में सताए जाते हैं तो परवाह ना करें। अगर खुदा की गवाही देने में आपको कोई बुरा भला कहता है तो मत घबराएं, अपने होठों को बंद मत करें। जहां आपको गवाही देनी पड़ती है मत घबराएं, ये ना देखें कि मुझे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, खुदा आपको संभालने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यासून जो था वो खुदा की मोहब्बत से लबरेज था। यासून के दिल में खुदा की मोहब्बत कूट कूट कर भरी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर खुदा की मोहब्बत आपके अंदर होगी तो गवाही देंगे ना। अगर खुदा की मोहब्बत आपके अंदर होगी तो आपका कलाम पढ़ने को जी जाएगा। लेकिन एक और बात है, जो ही आपका खुदा का कलाम पढ़ेंगे, आप पर मुकाशफे खुलेंगे, आप खुदा की मोहब्बत को देखेंगे और वो मोहब्बत आप दुनिया तक लेकर जाएंगे। यानी ये मोहब्बत जो है, आपकी मोहब्बत को, खुदा की मोहब्बत को आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता। कोई आपका माल दौलत लूट सकता है, कोई आपकी चोरी कर सकता है, कोई आपकी इंसल्ट कर सकता है, लेकिन खुदा की मोहब्बत को आपसे जुदा नहीं कर सकता। है जी, ऐसी बात है ना। हालेलुया। यानी वो मोहब्बत जितना मर्जी हमें दुख दे ले, लेकिन खुदा की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकाल सकता। आइए एक हवाला देखते, रोमियो की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 38 और 39 वर्ष में यूं लिखा है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा यीशु मसीह में है, उससे ना हमको मौत जुदा कर सकती है, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। हालेलुया, हालेलुया। यानी जब जब आपके अंदर खुदा की मोहब्बत होगी, यानी अगर आपने खुदा को अपना लिया है, अगर आपने तौबा कर ली है, आपने उसे कबूल कर लिया है, तो यकीन जाने खुदा की मोहब्बत आपको चारों तरफ से घेरे रखती है। मौत आ जाए, मोहब्बत जुदा नहीं होगी, रूह खुदा के पास जाएगी। कलाम में लिखा, जिस्म कमजोर है लेकिन रूह मुस्तैद है। जिस्म में तकलीफ आ जाए, जिस्म बीमारी में मुब्तला हो जाए, लेकिन रूह खुदा के साथ शांतमान है। अक्सर कहा जाता है वो तो खुदा का बड़ा प्यारा खादम था, वो क्यों बीमारी में मुब्तला हो गया, उसका क्यों एक्सीडेंट हो गया, या उसको क्यों बीमारी लग गई, ये वो क्यों ऐसी मुश्किल में फंस गया। वही वो भी तो इंसान है, बीमारी आ सकती है, परेशानी। खादमों का जिस्म नहीं है, बोले जी खादमों का जिस्म है ना, तो खादमों को भी हादसा हो सकते हैं। खादम भी
लेकिन रूह खुदा के साथ होनी चाहिए। जिस्म तो यही रह जाना है, रूह खुदा के साथ रहनी है। जब वो आएगा तो हम उसके साथ जी उठेंगे। कब जी उठेंगे? जब मोहब्बत हमारे अंदर होगी, और इस मोहब्बत को कोई हमसे जुदा नहीं कर सकता। ना हुकूमतें, ना फरिश्ते, ना कोई मखलूक, ना चीजें हाल की, ना इस्तकबाल की। कभी कभी हम बड़ा सोचते हैं, हाय मैं मोहब्बत में पड़ा हूं, मैं कलाम सीखता, सब कुछ करता हूं, अगले दिनों में मेरा क्या फिक्र? ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खुदा की मोहब्बत आपके अंदर है। यहोवा यरी, तू मेरे साथ है। यहोवा यरी, तू सब कुछ मुहैया करेगा। जब तू मेरे साथ है तो कौन मेरा मुखालिफ है? जितनी मर्जी हमारे चारों तरफ अबलीस हथकंडे पसा ले, लेकिन वो शिकस्त होता है, वो हारा हुआ है। फतहमंद हम हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डरा ना करो। यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को यानी रसूलों को, मैंने पहले भी बताया, वाज़ह तौर पे ऐलान किया था कि मैं चला जाऊंगा और मेरे जाने के बाद लोग तुम्हें अदालतों में घसीटेंगे, लोग तुम्हें हाकिमों के हवाले करेंगे। इसलिए घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या करेंगे, इन बातों से नहीं घबराना। आए मेरे साथ एक हवाला देखे मत्ती की इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 18वीं आयत। यहाँ लिखा है कि मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आदमियों से नहीं डरना, लोगों से नहीं डरना, हुक्मरानों से नहीं डरना, रिश्तेदारों से नहीं डरना। सिर्फ और सिर्फ उसकी गवाही देनी है, उसके नाम का इकरार करना। यासून डरा, बोले जी, यासून डरा, ऊंची आवाज से बोले, यासून डरा। उसने अपना घर खोल दिया, उसने मेहमान नवाजी की। हालांकि वो डर सकता था कि मैंने पालूस और सलास के लिए अपना घर खोला है, मैं उनकी मेहमान नवाजी कर रहा हूँ, वो मुझे कोड़े मारेंगे, वो मुझे जेल में भेज देंगे, वो मुझे फांसी लगा देंगे, जैसा वो करते थे। वो घसीट घसीट के कोड़े मारते थे, जो यीशु का नाम लेते थे। लेकिन वो कहता था कि हमें आदमियों से नहीं डरना, बल्कि आदमियों के सामने यीशु के जलाल का इकरार करना है, यीशु के नाम का इकरार करना है। आदमियों के सामने बताना है कि यीशु जिंदा है, आदमियों के सामने बताना है कि उसकी कब्र खाली है, लोगों के सामने बताना है कि वो जिंदा खुदावंद है, उसने हमें अपनी बादशाही में शामिल किया है। लोगों को बताना है कि हम उसकी मेरास में शामिल है। लोगों को बताना है कि वो जिंदा खुदा के हम परस्तार है। लोगों को बताना है कि हम उसके गवाह हैं। हार आवे नहीं आए, हम डरने वाले नहीं हैं। हालेलुया। आए मेरे साथ एक हवाला देखें मत्ती की इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 32 और 33 आयत में यूं लिखा है, पर जो कोई आदमी के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। देख लें, अगर आपने इनकार कर लिया, अगर आप डर गए, अगर आप छुप गए, अगर खादर को लेकर घर बंद कर लिया, तो देख लें, देखने वाला ऊपर है। उसके कलाम में लिखा है, उसकी निगाहें चारों तरफ फैली हुई हैं, वो बनी आदम पर लगा रखे हुए है, वो सबको देखता है, वो सबको सुनता है। इसलिए कभी अपने दरवाजे बंद मत करें, हमेशा हमेशा खुदा के लिए दरवाजे खुले रखें। आज अगर आप खादमों के लिए दरवाजे बंद करेंगे, खादमों को अपने घर में नहीं उतारेंगे, या खादमों की खिदमत नहीं करेंगे, या खादमों का इनकार करेंगे, तो खादम किसके भेजे में है? खुदा के भेजे में है। दूसरे लफ्जों में आप खुदा का इनकार कर रहे हैं। रोमियो 8 बाब और उसकी 35वीं आयत में यूं लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। यानी खतरे आ जाए, खतरात आपके चारों तरफ आ जाए, आपको मसीह की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप सच्चे मसीह के पैरोकार हैं, सच्चे मसीह से प्यार करने वाले हैं, तो आसमान के देखें, तलवार आपके सामने अगर लटकी हुई है, अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो वो तलवार गिर जाएगी, आप पर वार नहीं होगा। अगर आप मुसीबत में हैं, आसमान के देख ले, तंगी में है,
लोगों ने पुकारा, शागिर्दों ने पुकारा, बादशाहों ने पुकारा, नबियों ने पुकारा, फैमिलियों ने पुकारा, खानदान ने उसके आगे झुके, खुदा ने उनकी दुआओं का जवाब दिया। आपको याद है सिदरक मिसर अब्दनजू ने उन्हें कहा कि हम मूर्ति को सिजदा नहीं करना है, सात तार जलाना चाहते हो, भट्टी में डालना चाहते हो, डाल दो। वो तैयार हो कि हम भट्टी में चले जाएंगे लेकिन मूर्ति को सिजदा नहीं करेंगे। लेकिन खुदा की मोहब्बत वो जुदा उनसे नहीं कर सकते थे। वो जिंदा खुदा से मोहब्बत करते थे, वो खालिक से मोहब्बत करते थे, जिसने उनको अपनी शबीह पर बनाया उससे मोहब्बत करते थे, जिसने कहा मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा वो उससे मोहब्बत करते थे। चूही उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया, चौथा बचाने के लिए आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और जल्दी से एक छोटा सा वाक्य और बयान करना चाहती हूँ। दानियल के बारे में सुना आपने कि उन्होंने फरमान जारी किया था कि कोई शख्स अपनी इबादत नहीं करेगा, कोई दुआ नहीं करेगा। लेकिन दानियल नबी हाकिमों से नहीं डरा, उमरा से नहीं डरा, बादशाह से नहीं डरा। कलाम में लिखा वो दिन में 3 मरतबा यरूशलेम की तरफ दरीचा खोलकर दुआ करता था, खुदावंद इस्राएल को बहाली दे, खुदावंद इस्राएल को बहाली दे, खुदावंद इस्राएल को छुड़ा दे, खुदावंद इन पर सख्ती को तोड़ दे। और वो दुआ करता रहा। उन्होंने उनको शेरों की मांग में डाल दिया। लेकिन देख ले खुदा ने बादशाह का दिल बदल दिया। बादशाह सारी रात ना सोया, यही सोचता रहा कि मैं जानता हूँ कि दानियल का खुदा जिंदा है, मैं जानता हूँ कि दानियल का खुदा कुदरत वाला है, मैं जानता हूँ कि दानियल का खुदा जेल के दरवाजे तोड़ता है, मैं जानता हूँ कि आज दानियल के लिए शेरों के मुंह बंद कर दिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही सुबह चढ़ी उसने कहा दानियल खुदा के बंदे, जिंदा खुदा के मानने वाले, क्या तू जिंदा है? उसने कहा बादशाह तेरी सलामती हो, मैं बिल्कुल जिंदा हूँ, क्योंकि खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए थे, खुदा ने शेरों की धूप को खत्म कर दिया था, खुदा ने शेरों की जबीलत को दूसरी तरफ मोड़ दिया था। वो शेर उसको सजदा कर रहे थे और दानियल सही सलामत आ गया। फिर भी आप डरते हैं? बोले फिर भी डरेंगे? नहीं डरना। आदमी के सामने इसका इकरार करें, उमरा के सामने इसका इकरार करें, बादशाहों के सामने इसका इकरार, अपने खानदान से शुरू करें। आज से शुरू करें कि खुदा अगर यसून एक बंदा होकर कलाम की मनाते में हिस्सा डाल सकता है तो मैं कहाँ। अपने आप को परखें और खुदा के कलाम को फैलाना शुरू करें। हालेलुया।